Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an insightful video on the topic of empowerment of women and other weaker sections for Class 9 students studying under the Maharashtra State Board. This video aims to provide a comprehensive understanding of this significant aspect of history. The video delves into the struggles faced by women and marginalized communities throughout history and highlights the efforts made to empower them. It sheds light on remarkable individuals who fought against gender and caste-based discrimination, emphasizing their immense contributions to society. By exploring the socio-political context, the video explains the reforms and movements that played a pivotal role in uplifting these suppressed sections. It covers important topics such as women's education, women's suffrage, and the abolition of untouchability, offering a well-rounded perspective on the subject matter. Furthermore, Ignited Minds Tutorials goes beyond mere narration by presenting engaging visuals, relevant examples, and thought-provoking questions throughout the video. This approach encourages students to think critically and fosters a deeper understanding of the subject. With its concise yet comprehensive content, this video by Ignited Minds Tutorials provides Class 9 students with valuable knowledge on the empowerment of women and other weaker sections. By offering an inclusive and empowering perspective on history, the video encourages young minds to recognize the importance of equality and strive for a more equitable society. Okay, people, we will start with this chapter, empowerment of women and other weaker sections. ठीक है, तो empowerment of women and other weaker sections में हम पढ़ेंगे कैसे हमारे सोसाइटी में चेंजेस आए जिसके वजह से वुमेन को ज़्यादा एम्पावरमेंट मिला. ठीक है, एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल. ठीक है, ओके. सो लेट्स सी आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. तो वुमेन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिपेंडेंस के लिए और इंडिपेंडेंस के बाद भी. मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, लॉज फॉर वुमेन, प्रोविजन ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पूरा चैप्टर एट अ ग्लांस ऑब्वियसली. ओके, ऑलराइट. सो वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल हमने देखा है भाई साहब, बहुत सारे वुमेन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लारी लक्ष्मीबाई. ठीक है, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हुए, एनी बिसेंट. ठीक है, सो द रूट्स ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन लाई इन द मेंटालिटी ऑफ वुमेन और मेंटालिटी ऑफ मेन. तो हमारे समाज में ज़्यादा करके जो वुमेन पे शोषण होता आया है वो ड्यू टू मेंटालिटी ऑफ मेन की वजह से होता है. ठीक है, सो मेन आर नॉट वेरी इंक्लाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन. Men have not shown very interest in the development of the society with regards to development of women. हालांकि हमने अदर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को समझा है, जाना है और उसको प्रोत्साहन भी दिया है, लेकिन वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट को उतना ज़्यादा प्रोत्साहन हमारे इंडियन सोसाइटी में नहीं मिला है. ठीक है, द रूट्स ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय वुमेन actually lie in the mentality of men. In spite of this, women had participated extensively in the freedom struggle, ठीक है, as well as made important contribution in all fields in the post-independence period. तो इसके बावजूद भी वुमेन लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन द फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, और काफ़ी सारा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. भूदान मूवमेंट, विनोबा भावे मेड यूज ऑफ वुमेन पावर इन भूदान मूवमेंट विच ही हैड स्टार्टेड प्लेसिंग हिज फेथ इन महात्मा गांधीज फिलोसफी. ठीक है, तो भूदान मूवमेंट में आचार्य विनोबा भावे थे. उन्होंने भाई साहब गांधी की फिलोसफी को एक्सटेंड करते हुए भूदान मूवमेंट में वुमेन वॉलंटियर्स कैरिड द मैसेज ऑफ भूदान टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये मैसेज पूरे इंडिया में फैला. वुमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन तेलंगाना पीजेंट्स आर्म स्ट्रगल विच चैलेंज द रूल ऑफ निजाम्स एंड द फ्यूडल सिस्टम. ठीक है, सो वुमेन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बहुत सिग्निफिकेंट सा रोल इन्होंने निभाया है. तेलंगाना पीजेंट्स आर्म स्ट्रगल विच चैलेंज द रूल ऑफ निजाम्स एंड द फ्यूडल सिस्टम. As the region became free from bonded labor, women also found freedom from this torment. तो वुमेन को भी भाई साहब फ्रीडम मिला. ठीक है, आप एक दिन पहले कैसे सिलेबस टाइम टेबल फॉरवर्ड कर सकते हैं? ये कब आया था टाइम टेबल या सिलेबस? एक वीक पहले. तो क्यों नहीं आया मुझे? आप लोग फटाक से ऐसे सिलेबस और टाइम टेबल फॉरवर्ड करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं कोई मैजिक करूं, तो ये नहीं हो सकता. और फिर कंप्लेन आता है कि आई एम डिसअपॉइंटेड.
अरे डिसअपॉइंटेड होंगे, आपकी तरफ से लेट है चीजें। आपने देखा सीबीएसई वाले फटफट डालते हैं कभी भी उनका कोई भी एग्जाम आता है, आपको एक वीक पहले टाइम टेबल मिला हुआ है, अभी उसको दबा के बैठे हुए हैं, क्या करें हम उसका? वाई इज इट नॉट पोस्टेड इन द ग्रुप और वाई इज इट नॉट सेंड टू मी एज अ पर्सनल मैसेज? 2 तारीख से एग्जाम है और मुझे सिलेबस और टाइम टेबल मिलता है 31 को। मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन मूवमेंट लाटने मोर्चा इन 1972, कमोडिटीज लाइक, ठीक है, ऑयल, घी, रवा, मैदा जो हमारे घरों में, इंडियन घरों में ज़्यादा करके यूज़ होता है, मैदा बिकेम स्केयर्स जस्ट एज दिवाली वाज अप्रोचिंग। और अगर आप देखोगे दिवाली में इन चीज़ों की डिमांड्स बढ़ जाती है, ठीक है, द डिमांड फॉर दीज थिंग्स इंक्रीज इन दिवाली। केरोसिन टू हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, केरोसिन भी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका था, ठीक है। द वुमेन इन मुंबई पार्टिसिपेटेड इन द लाटने मोर्चा अंडर द लीडरशिप ऑफ सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे, wielding their rolling pins and demonstrated against the increasing prices of commodities। तो ये जो रोलिंग पिन्स होते हैं जिससे वो जूड़ा बांधते हैं, रोलिंग पिन होता है, ठीक है, उसका मोर्चा है ये बेसिकली लाटने मोर्चा, ठीक है। और इन्होंने इसके अगेंस्ट मोर्चा धरा, ठीक है, कि इतना ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गया है, हमारा दिवाली आने वाला है, हम घरों में क्या पकवान बनाएंगे और क्या ही दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। चिपको मूवमेंट 1973, ट्रीज इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस वेयर टू बी कट डाउन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और कमर्शियल पर्पसेस के लिए ऐसा एक ऑर्डर जारी किया गया जहाँ पे हिमालयस के फुटहिल्स में जो ट्रीज थे उनका कट डाउन चालू था, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस, चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बगुना इनिशिएटेड अ मूवमेंट। इन्होंने भाई साहब एक मूवमेंट इनिशिएट किया। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज मूवमेंट्स नंबर्स होल्डिंग हैंड्स एंड इनसर्कलिंग ईच ट्री टू प्रोटेक्ट इट। तो इन्होंने सारे ट्रीज को ऐसे मतलब बहुत बड़ा मोर्चा निकाला और सारे ट्रीज को ऐसे घेर लिया, ठीक है। सो दिस मूवमेंट वाज लेड बाय एक्टिविस्ट गौरा देवी विद द हेल्प ऑफ सुदेशा देवी एंड बाचनी देवी। सो दीज वर बेसिकली पीपल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ऊपर। तो ये सब कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जहाँ पे वुमेन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एंटी लिकर मूवमेंट, ठीक है। वुमेन इन आंध्र प्रदेश वर फेसिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म। आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारा अल्कोहलिज्म था, लोग अल्कोहल से एडिक्टेड थे। और जब घर के मर्द लोग अल्कोहलिज्म में एडिक्टेड होते हैं, रोज़ पी पा के आते हैं तो मारामारी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर का जो बजट है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। इस दारू पीने के चक्कर में बहुत सारा कुछ फैमिली डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सो वुमेन इन आंध्र प्रदेश वेर फेसिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म। तो अल्कोहलिज्म मतलब दारूबाजी, ठीक है। और इसका क्या क्या इल इफेक्ट्स है भाई साहब? घर में पैसों की कमी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। घर में भाई साहब डोमेस्टिक वायलेंस होगा, लोग एक दूसरे से अनायास झगड़ा झगड़ी करेंगे, ठीक है, ये सारा सब कुछ होगा। सो ये इल इफेक्ट्स है अल्कोहलिज्म के। द लिटरेरी प्रोग्राम हैड क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग अल्कोहलिज्म। अभी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा था कि अल्कोहलिज्म के डिसएडवांटेज क्या है। ऑब्वियसली पैसा खर्च होना, बेकार में पैसा खर्च होना, प्लस लोगों का फ्रस्ट्रेटेड होना, और दूसरी बात ये हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। द इंसिडेंट ऑफ 3 youths फ्रॉम दुबागुंटा विलेज इन नेल्लोर ड्राउनिंग इन द स्टेट ऑफ इनेब्रेशन ट्रिगर्ड द एंटी लिक्वर मूवमेंट। अभी देखो 3 जवान लड़के, ठीक है, दारू पी के भाई साहब नदी में डूब गए। मतलब खेल खेल में होश नहीं रहता है, जब इंसान दारू पीता है तो एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब खेल खेल में भाई साहब गए और तीनों भी डूब गए। और यही कारण बना कि सब लोग बेसिकली रास्ते पे उतर आए इस मूवमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। सो द इंसिडेंट ऑफ 3 youths फ्रॉम दुबागुंटा विलेज इन नेल्लोर ड्राउनिंग इन द स्टेट ऑफ इनेब्रेशन। इनेब्रेशन मतलब आपका भाई साहब दारू के इंटॉक्सिकेशन स्टेट में, ठीक है, ट्रिगर्ड द एंटी लिकर मूवमेंट। वुमेन ऑफ द विलेज केम टुगेदर एंड फ्लोज द क्लोजर ऑफ अराक, अ लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल शॉप। अराक मतलब होता है देसी दारू के अड्डे, ठीक है। एक तो होता है भाई साहब वाइन शॉप्स, एक होता है भाई साहब बियर शॉप्स, पब्स वगैरह होते हैं, और एक होता है देसी दारू के अड्डे, ठीक है। यहाँ पे देसी तरीके से दारू बनाया जाता है, ये डेंजरस होता है, ठीक है। कभी कभी उल्टा इफेक्ट हो जाता है क्योंकि ये लाइसेंस्ड नहीं होता है, ये बेसिकली प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, और कभी कभी बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। वुमेन ऑफ विलेज केम टुगेदर एंड फोर्स द क्लोजर ऑफ अराक, ठीक है, अ लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल शॉप्स। द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर स्टेट। तो यहाँ से भाई साहब मूवमेंट पूरे स्टेट में स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है।
द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल। तो दारू जो खुल्लम खुल्ला बेचा जाता था उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी पड़ी, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वेर हैपनिंग ड्यू टू अल्कोहलिज्म। Okay, so choose the correct option from the given options and complete the statements dash with help of women power carried Bhudan movement. Who? Acharya Vinoba Bhave. ठीक है, under the leadership of socialist leader dash women participated in the Latne Morche. ठीक है, तो मृणाल गोरे under the leadership of socialist leader मृणाल गोरे women participated in large movements in the Latne Morcha. Latne Morcha क्या था? क्या था Latne Morcha? आपके जितने भी डेली यूज की चीजें हैं जैसे मैदा, ठीक है, रवा, ठीक है, इन सब चीजों का दाम बढ़ गया था और ये दिवाली, तभी दिवाली का सीजन चल रहा था और दिवाली में लोग भाई साहब मिठाई पकवान बनाते ही हैं, तो इन सब चीज़ों के दाम बढ़ जाने के चलते वुमेन लोगों ने अपने रोलिंग पिन से, हेयर पिन्स जो होते हैं उनसे एक मोर्चा धरा जिसका नाम था लाटने मोर्चा, ठीक है। इन 1992 अ वुमेन मूवमेंट अगेंस्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड। तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा थी, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। देयर वाज एन ऑर्डर टू कट डाउन ट्रीज इन ह्यूज नंबर्स फॉर वेरियस पर्पसेस, और वहाँ के लोकल जो वुमेन लोग थे उन लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करके इन पेड़ों को बचाया, इन पेड़ों को घेर लिया बेसिकली, ठीक है। The Chipko movement took place in the year 1973. The trees from the forest in the foothills of Himalayas were to be cut down and used for commercial purposes. तो इन trees का काटा जाना और इनको commercial purposes के लिए use किया जाने लगा। In order to prevent this from happening, Chandi Prasad Bhatt and Sundar Lal Baguna initiated a movement. तो ये लोग leaders थे, Chandi Prasad Bhatt and Sundar Lal Baguna, they were the leaders of this movement. The women participated in large numbers and followed the strategy of holding hands and encircling each tree to protect it from being cut. सबने भाई साहब पेड़ों को घेर लिया, तो बहुत लार्ज नंबर्स में ये आए और जो पेड़ काटे जाने थे उनको घेर लिया, ठीक है। The awareness among the women was created by an activist named Gaura Devi with the help of Sudesha Devi and Bachni Devi. सो ये लोग वहाँ के लोग थे, हिमाचल प्रदेश के लोग थे, गौरा देवी, सुदेशना देवी एंड बाचनी देवी। दीज पीपल बेसिकली एसिमिलेटेड all the women and participated in this protest against the cutting down of trees. Since their method involved protecting the trees by, जब बोलते हैं ना चिपक गया है भाई साहब, ठीक है, तो इसीलिए इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? चिपको मूवमेंट। ये भाई साहब पेड़ों के साथ चिपक गए ऐसे, उनको काटने नहीं देंगे, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? चिपको मूवमेंट, ठीक है। Explain the statements with reasons. Under the leadership of socialist leader Mrinal Gore, women in Mumbai participated in the लाटने मोर्चा। तो लाटने मोर्चा कब हुआ था? दिवाली के टाइम पे हुआ था, जब रवा, मैदा, इन सब चीज़ों के दाम अचानक से गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए थे, जिसके वजह से काफ़ी सारा प्रेशर आपके फैमिली लाइफ पे आया था, ठीक है। इन 1972 कमोडिटीज लाइक ऑयल, घी, तो अगर आप देखोगे ये सारे ज़्यादा करके मूवमेंट्स आपके कभी के हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस तो था ही, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के मूवमेंट है। तो 1972 में कमोडिटीज लाइक ऑयल, घी, रवा, मैदा बिकेम स्केयर्स, मतलब ये बहुत दुर्लभ हो गए, ठीक है। जस्ट एज दिवाली वाज अप्रोचिंग, केरोसिन टू हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव। ये सब मतलब दुकानदारों की चाल होती है, उनको मालूम है कि ये सब चीज़ों की अभी डिमांड बढ़ने वाली है, तो रोक दो भाई साहब। जैसे ही रोक देंगे तो बाजार में हाहाकार मचेगा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो लोगों में अभी लोग ज़्यादा पैसे देकर भी इनको लेंगे, ठीक है, क्योंकि घर में दिवाली तो नहीं रोक सकते ना, ठीक है। तो ये सब दुकानदारों की चाल होती थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, मोनोपोली थी भाई साहब। देयरफॉर द बर्न ऑफ, तो उस टाइम पे हमारे ऐसे जैसे बड़े बड़े मॉल्स हुआ करते थे, डीमार्ट हो गया भाई साहब, बिग बाजार हो गया, ऐसे सब मॉल्स नहीं थे कि आप जाके भाई साहब वहाँ से ले लें चीज़ों को। उस टाइम पे ये सब नहीं था, उस टाइम पे किराने की दुकान से सारी चीज़ चलती थी, और किराने की दुकान वाले सब एसोसिएशन बनाकर क्या बोलते थे? माल दबा दो भाई साहब, ठीक है। अभी जितने भी माल है वो सब दबा देते थे, और अचानक भयानक में भाई साहब हाहाकार मचता था, तो लोग अभी कोई भी पैसा देकर इन चीज़ों को खरीदेंगे। सो जो तुम्हारे पास 10 रुपये की चीज़ है वो 20 रुपये में बिकेगी, डबल प्रॉफिट हो जाएगा तुमको, ठीक है। क्योंकि मालूम था कि लोग को कि अभी दिवाली आने वाली है, और कैसे भी करके लोग अपने फेस्टिवल्स को नहीं रोकेंगे इंडिया में, और फेस्टिवल्स को नहीं रोकेंगे तो इसका बात का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया, ठीक है। ओके, देयरफॉर वुमेन इन मुंबई केम टुगेदर एंड पार्टिसिपेटेड इन द लाटने मोर्चा, द रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन
under the leadership of socialist leader मृणाल गोरे against increasing prices of the commodities। तो ये जो prices बढ़ गए थे commodities के, इनके अगेंस्ट में इन्होंने मोर्चा धरा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। Explain the statements with reason। In 1992 in Andhra Pradesh a movement was started against the drinking of alcohol। तो अल्कोहलिज्म जो तो आंध्र प्रदेश स्टेट में बहुत ज़्यादा था, और इतना ज़्यादा था कि इस पे फैमिली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था। क्या क्या प्रेशर आ सकता है? ऑब्वियसली आपका इनकम बर्बाद होता है, फालतू में लोग दारू पी के पड़े रहते हैं, लोग काम नहीं करते हैं, ज़्यादा दारू पियेंगे तो काम करने लायक रहेंगे नहीं, ठीक है। फिर घर में झगड़ा झांसा होगा भाई साहब, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, और फिर अपना शरीर भी खराब होगा, लिवर विवर सब भाई साहब दारू से खराब होता ही है, हमको मालूम है। तो दारू के सिर्फ इल इफेक्ट्स ही हैं, ठीक है। लेकिन दारू बहुत आराम से पाई जाने वाली चीज़ थी। देसी दारू के ठेके हुआ करते थे, जहाँ पे आराम से सुबह के 7 बजे भी आपको दारू मिल जाएगा, ऐसा है, ठीक है। सो लोग बहुत ज़्यादा दारू प्रेफर करते थे, आराम से दारू पी रहे, गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं है। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि 3 youths बेसिकली गॉट ड्राउंड अंडर द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन अ, और जैसे ये हुआ बस अभी ट्रिगर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट बॉम्ब रेडी था, किसी ने माचिस लगा दिया, ठीक है। तो भाई साहब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। In Andhra Pradesh, due to government policy, the Arak locally produced alcohol shops were set up in every village and town। अराक क्या होता है? मतलब ये देसी दारू का ठेका होता है। ये मतलब फल फूल से निकाला जाता है दारू, जैसे वो नीरा की दुकान होती है, देखा है आपने, हाईवे में रहता है, वही चीज़ अगर तुम देर तक रख दोगे तो वो दारू बन जाएगा, वो दारू बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मतलब बहुत आसानी से कोई भी दारू बना सकता है, ठीक है, किसी भी फल से। तो ये जो लोकली प्रोड्यूस दारू था वो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने रखा था कि आप बेच सकते हैं, इसको कोई भी बेच सकता है, ठीक है, लोकली इन एवरी विलेज एंड टाउन। ड्यू टू दिस पुअर लेबरिंग पीपल गॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल। तो जो लेबर क्लास के लोग थे, ठीक है, ये अल्कोहल का एडिक्शन हो गया इनको, सुबह सुबह 7 बजे जाके दारू पी लेने का, ठीक है। द अल्कोहलिज्म अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वुमेन इन द फैमिली ऑफ अल्कोहलिक्स। दे फेस्ड एक्सट्रीम सॉरो एंड पॉवर्टी। बहुत गरीबी आने लगी, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा तो इसी में जा रहा है। And also the crisis due to untimely death of breadwinner on account of alcoholism। देसी दारू है ये, ठीक है, फिल्टर्ड दारू नहीं है। तो देसी दारू में लिवर का सड़ना तो मतलब तय ही है, ठीक है, ज़्यादा सड़ेगा, बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये सारा फैमिली में टर्मोइल चालू हो गया। एट दैट टाइम अ लिटरेसी प्रोग्राम वॉज बीइंग कंडक्टेड इन द विलेजेस। तो लिटरेसी प्रोग्राम कंडक्ट हो रही थी, गवर्नमेंट कंडक्ट करवा रही थी, ठीक है, लोगों को लिटरेट बना रही थी। इन दिस प्रोग्राम द अवेयरनेस रिगार्डिंग द अल्कोहल वॉज क्रिएटेड थ्रू दी स्टोरी ऑफ सीतम्मा, ठीक है। सो ये ऐसे अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट में एक मोर्चा या अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट में एक अवेयरनेस फैलाया जा रहा था, ठीक है। इन 1992 अभी ये भाई साहब ये सब तो सिचुएशंस हैं, ये सब पहले से ही क्रिएटेड हैं, ठीक है। अब भाई साहब बम में चिंगारी लगाने की देर थी, लोग भड़के ही हुए थे। अल्कोहलिज्म जो गवर्नमेंट ने फ्री लाइसेंस ग्रांट करके रखा था इतने लोगों को फ्री में दारू बेचने के लिए, कोई भी दारू बना सकता है और बेच सकता है। इन दारू के देसी दारू के ठेकों में कोई भी बना सकता है और बेच सकता है। तो इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी लोगों का बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और जब ऐसी घटना घटी जहाँ पे 3 youths lost their lives in the state of intoxication by drowning in a river, then it basically triggered the motion. So 3 youths from Duba Gunta village of Nellore district died by drowning in a lake in a state of inebriation. This led to the anti-liquor movement, wherein the women of the village came together and forcefully closed the arak shops. arak shops मतलब देसी दारू के ठेके थे। ये वुमेन लोग अभी बाहर आए और सब ने फोर्सफुली इसको क्लोज किया, ठीक है। इट वाज बेसिकली क्लोज। इन दिस वे अ मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इन आंध्र प्रदेश इन 1992। मुंबई में अभी भी कुछ जोन्स हैं जहाँ पे आप दारू नहीं बेच सकते, जैसे ज़्यादा दूर नहीं, आप खारगर जाएंगे तो खारगर इज़ बेसिकली अ नो अल्कोहल जोन, ठीक है। वहाँ पे आप अल्कोहल का कोई वाइन शॉप नहीं देखेंगे, कोई बियर शॉप नहीं देखेंगे, या कोई रेस्टोरेंट एंड बार नहीं देखेंगे। रेस्टोरेंट रहेगा लेकिन बार नहीं रहेगा, ठीक है। सो इट्स ए नो अल्कोहलिक जोन। वहाँ पे एक बार बीच में किसी ने वाइन शॉप खोलने की कोशिश की थी, सब लोगों ने तोड़ ताड़ दिया उसको, ठीक है। तो है होता है, ठीक है, कहीं पे कुछ गलत हुआ रहेगा उसके वजह से। तो यहाँ पे भी ये मूवमेंट हुआ जिसके वजह से आंध्र प्रदेश में दारू इस तरह से बेचना बंद हो गया, ठीक है। ओके, देखो ज़्यादा करके लोग दारू कब पिएंगे? जब दारू सस्ती हो। समझ में आ रही है? अगर दारू सस्ती, और दारू सस्ती कब होगी? जब उसको आप देसी तरीके से बनाएंगे और बेचेंगे, जिसमें फिल्ट्रेशन नहीं है। दारू के फिल्ट्रेशन में ज़्यादा खर्चा है, ठीक है। और इसीलिए जब भी आप देखोगे गवर्नमेंट बजट रिलीज़ करती है, 2 चीज़ों के प्राइस गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है, दारू और सिगरेट, और इसके बीच इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है।
गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब मत पियो, है ना, हम कहाँ बोल रहे तुम पियो। तो अभी अगर आप प्रोटेस्ट करने जाएंगे आपने दारू का पैसा क्यों बढ़ाया है, तो गवर्नमेंट बोलेगी मत पियो ना, तुम ना पियो इसलिए तो हमने बढ़ाया है। इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये इंजीरियस टू हेल्थ है। सो वी हैव इंक्रीज द प्राइस। और गवर्नमेंट के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा इनकम दारू के टैक्स पे है, दारू और सिगरेट के टैक्स पे। ये सबसे बड़ा इनकम जनरेटिंग सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के हर बार हर बजट सेशन में इनके प्राइसेस बढ़ाने के बावजूद भी लोग इसको बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। 31 और 1 तो भाई साहब लोग दारू में डूबे रहते हैं, है ना, थोड़ा बहुत नहीं। ओके सो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये ऐसा एक कमोडिटी है कि पीपल आर पेइंग एनी प्राइस फॉर इट, ठीक है। सो अभी उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। What were the effects of anti-liquor movement that was held in Andhra Pradesh in 1992? The incident of 3 youths from Dubagunta village in Nellore, ठीक है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में एक जगह है, दुबागुंटा एक विलेज है जहाँ पे 3 यूथ्स मतलब 3 जवान लड़के दारू के नशे में भाई साहब नदी में नहा रहे थे और डूब गए, ठीक है। सो ड्राउनिंग इन द स्टेट ऑफ इनब्रिएशन ट्रिगर्ड द एंटी लिकर मूवमेंट। इससे भाई साहब एंटी लिकर मूवमेंट को माचिस लग गया, भाई साहब एक बम वो पहले ही बन चुका था, अभी भाई साहब किसी को माचिस लगाने की देरी थी और ये हो गया। ड्यू टू द लिटरेसी प्रोग्राम, अभी यहाँ पे गांव भर में लिटरेसी प्रोग्राम भी फैला हुआ था, ठीक है, जिसमें अवेयरनेस अगेंस्ट अल्कोहलिज्म को जागरूक किया जा रहा था। अवेयरनेस रिगार्डिंग अल्कोहलिज्म हैज बीन क्रिएटेड among the people, awareness against alcoholism was created. Women of village came together and forced the closure of Arak, a locally produced alcohol shop. The news of this movement was reported in a local newspaper and it had its effect on many other villages. तो भाई साहब ये प्रोग्राम चल रहा था जहाँ पे सितम्मा के अगेंस्ट में मतलब एक लोकल अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। गांव-गांव में जाकर लिटरेसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही थी। लोगों में जाकर नाटक या वैसा जैसे रोड शोज करते हैं वैसा शो हो रहा था और उसमें दारू के अगेंस्ट एक प्रोग्राम भी था। ये प्रोग्राम भाई साहब क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स में छापा जाना लगा और ज़्यादा आंध्र प्रदेश में लोकल न्यूज़पेपर्स के चलते ये प्रचलित हुआ। द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट में भाई साहब फैल गया। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल। तो गवर्नमेंट ने जो ये एराक क्रिएट किए थे जहाँ पे देसी दारू भाई साहब फ्रीली बिक रहा था उस पर रोक टोक लग गया। इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन द अदर स्टेट्स टू, दूसरे स्टेट्स में भी इस पे एक अच्छा रिस्पॉन्स आया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। International Women's Year, the United Nations had declared 1975 as the International Women Year। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, मैंने देखा है, ठीक है। 1975 को यूएन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक है। यूएन का निर्माण हुआ जब बहुत सारा भाई साहब वॉर्स वगैरह हो रहा था और लोग थक चुके थे वॉर से, तो यूएनओ फॉर्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएनओ, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर, ठीक है। तो ये यूएन ने भाई साहब 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर मनाया गया, मतलब वुमेन्स के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड डिफरेंट कंट्रीज शेयर देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। आज की तारीख में हमारा मेजर प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, तो यूएन ज़्यादा करके इनिशिएटिव्स ले रही है इसको कम करने के लिए। उस टाइम पे वुमेन्स के अगेंस्ट भाई साहब बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स चला। पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन वेर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन में इक्वालिटी, ये सारे भाई साहब प्रोग्राम के मोटिव्स थे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर फुलरेनु गुहा इन 1975। तो डॉक्टर फुलरेनु गुहा के तहत अभी इंडिया को भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया यूएन का एक पार्टिसिपेंट है, ठीक है। जैसे ऐसे सोचो कि आपका स्कूल है और स्कूल में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो सबको ये प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया, तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चार्ट पेपर में सब लोग कुछ ना कुछ बनाकर लेकर जाएंगे। तो वैसे ही यूएन में इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर मनाया जा रहा है, तो हर कंट्री को अपने कंट्री में उन्होंने क्या किया है उसको प्रेजेंट करना है। तो इंडिया को भी प्रेजेंट करना था, तो इंडिया ने इनको डॉक्टर फुलरेनु गुहा को 1975 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो अभी इंडिया में क्या स्टेटस है वुमेन का उस साल में इनको भाई साहब जिम्मेदारी दी गई। सर्वे रिगार्डिंग द फॉलोइंग इश्यूज वाज कंडक्टेड। सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन एंड देयर स्टेटस, तो वुमेन की पोजीशन क्या है और उनका स्टेटस क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर वुमेन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, तो भाई साहब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उनके लिए और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे, व्हाट वर देयर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब हमारे संविधान में वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या नियम कानून थे
और अगर उनका उल्लंघन हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। एजुकेशन फॉर वुमेन, देयर प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन एंड इट्स परसेंटेज, तो कितने ही वुमेन का एजुकेशन होता था और उस एजुकेशन के चलते उनका क्या प्रोग्रेस होता था और उसका परसेंटेज क्या था, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन वेर एक्चुअली एजुकेटेड। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, द पोजीशन ऑफ वुमेन एट वर्क एंड देयर रिलेटिव वेजेस, ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस करते थे, ठीक है, व्हाट वेर द डिफिकल्टीज दैट वेर फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, जो वर्किंग वुमेन थे वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते थे। द पोजीशन ऑफ वुमेन एट वर्क, वुमेन की पोजीशन क्या थी वर्क में, ठीक है, काम में उनका पोजीशन क्या था, कैसे काम में उनको ट्रीट किया जाता था, ठीक है, एंड देयर रिलेटिव वेजेस, और उनके भाई साहब जो वेजेस थे भाई साहब। ओके, द फीमेल मेल रेशियो, बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट्स एंड द रोल ऑफ वुमेन, तो फीमेल इज टू मेल रेशियो क्या था, क्योंकि हमारे इंडिया में फीमेल इज टू मेल रेशियो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, बहुत भ्रूण हत्याएं हुई हैं, फीमेल इन्फेटिसाइड के केसेस हुए हैं, जहाँ पे अगर जो शिशु है जिसका परवरिश माँ के पेट में हो रहा है, अगर हम पता चलता है कि इट्स अ वुमेन, देन उसको मार दिया जाता है, बिकॉज मेन आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द ब्रेड विनर्स फॉर द फैमिली एंड वुमेन आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 940 का रेशियो चल रहा है, पर 1000 मेल्स देर आर ओनली 940 फीमेल्स। कुछ कुछ स्टेट्स में ये रेशियो और भी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, जैसे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा एक ऐसा जगह है जहाँ पे 900 से भी नीचे चला गया है, अप्रॉक्सीमेटली 812 तक, 700 तक भी चला गया है, ठीक है, 700 तक गया है, पर 1000 मेल्स देयर आर ओनली 750 फीमेल्स, ऐसा आंकड़े गए, जो बहुत ही बुरा हुआ बिगड़ा हुआ परिस्थिति है। हरियाणा में उल्टा है, जैसे यहाँ पे लड़की को ब्याह जाने के लिए लोग दहेज देते हैं, विच इज अगेन अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, वहाँ पे लड़के वाले दहेज देते हैं अगर लड़की को ब्याह जा रहा है, क्योंकि लड़की नहीं मिल रही है ब्याहने के लिए, ठीक है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इलीगल तरीके से भ्रूण हत्याएं हुई हैं, इलीगल तरीकों से फीमेल इन्फेटिसाइड हुआ है, ठीक है। द फीमेल मेल रेशियो, बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट्स एंड द रोल ऑफ वुमेन, तो ये सब चीजें थी भाई साहब। स्त्री मुक्ति मूवमेंट्स एंड इट्स एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविस्ट, स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन in 1975. It published its manifesto in 1978 and the struggle against gender discrimination, ठीक है, तो जेंडर वाइज जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया, ठीक है। ओके, स्त्री मुक्तीची ललकारी एंड अ स्ट्रीट प्ले कॉल मुलगी झाली हो बाय ज्योति मापसेकर was performed as a result of this policy। तो ये सब ग्रामीण अंचलों में या गांव-गांव में ऐसे रोड शोज होने लगे, ठीक है। प्रेरक ललकारी पीरियोडिकल केम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ माउथ पीस, एक पीरियोडिकल होता है मतलब मैगजीन टाइप का, ठीक है, फॉर वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इन 1977 ग्रुप्स ऑफ स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति वर एस्टैब्लिश्ड बाय सौदामिनी राव इन पुणे। बयाजा स्त्री उवाच मैत्रीन वेर पब्लिश्ड, ठीक है, स्त्री अनन्य विरोधी मंच इन औरंगाबाद, महिला दक्षता समिति इन कोल्हापुर, महिला हक्का इन नासिक एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वेर सम ऑफ द ग्रुप्स दैट वेर फॉर्म टू एम्पावर वुमेन। तो ये महाराष्ट्र की बातें हो रही हैं, महाराष्ट्र में जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए टू एम्पावर वुमेन, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स एंड ऑल ऑफ दीज आर मोस्टली पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के मूवमेंट्स हैं ये, ठीक है, इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। महाराष्ट्र, फॉर्मेशन ऑफ एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमिटीज। डाउरी क्या होता है? दहेज, ठीक है, जो इलीगल है लेकिन अभी भी लिया जा रहा है, ठीक है, अभी भी भाई साहब अरे लड़की वाले अपनी इच्छा से दे रहे हैं, हम क्या करें, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो मांगा गया है, ठीक है, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है लेकिन उसको मांगा गया है। तो दहेज मतलब भाई साहब अगर लड़का थोड़ा टैलेंटेड है, लड़का अच्छा जॉब कर रहा है और स्पेशली अगर गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है, तो लड़के वाले झिझकते नहीं हैं लड़कियों से दहेज मांगने के लिए, ठीक है। तो बेटी जो नौकी है उनको भाई साहब मोटा पैसा देना पड़ता है एज डाउरी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमिटीज, तो अगर कहीं भी रिपोर्ट होता है दहेज उत्पीड़न का मामला, अभी दहेज दे दिया, लड़की विदाई हो गई,
उसके बाद भी दहेज उत्पीड़न चालू रहता है। अरे आपने दिया नहीं, आपने बोला था आप इतना पैसा देंगे, क्या हुआ, ठीक है। फिर अगर नहीं आ रहा है दहेज तो क्या करेंगे, लड़की को उत्पीड़न करना चालू करेंगे, लड़की का मानसिक उत्पीड़न चालू होगा, लड़की को भाई साहब कष्ट दिया जाएगा ससुराल में। ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिनसे आप भी शायद वाकिफ़ होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती थी भाई साहब। देखो लड़की एक तरफ बिहाई जा रही है और उसके साथ भाई साहब मोटा गड्डी, ठीक है। धुले प्रोटेस्ट अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ वुमेन, periodicals of Vidya Bal like Nari Samata Manch and Milun Saryajini along with the work of Samajwadi Mahila Sabha and the Krantikari Mahila Sangathan were the immense help in dealing with women's issues। तो ये women's issues में काफ़ी सारा help हुआ। The employment guarantee scheme in Maharashtra also contributed in the empowerment of women। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि देखो दहेज प्रथा खराब है, महिलाओं को ना पढ़ाना खराब है, महिलाओं की भ्रूण हत्याएं करना ये भी खराब है, ये सारी चीज़ें तो खराब है। हमने सबके लिए लॉस बना दिया, लेकिन ये है क्यों, वाई आर दीज देयर। महिलाओं का भ्रूण हत्याएं होना मतलब जब वो अपने माँ की कोख में है, अगर डिटेक्ट हो गया तो उनकी हत्या कर दो, ठीक है। और महिलाओं का भाई साहब शिक्षा में ज़्यादा परिवार को इन्वेस्ट ना करना, ठीक है। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, शादी होनी है भाई साहब। दहेज देना, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ठीक है। वाई आर दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज देयर एसोसिएटेड विद वुमेन, क्योंकि हमने वुमेन को कभी एम्पावर किया ही नहीं है। अभी वुमेन को एम्पावर करने के लिए हमको वुमेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मतलब वुमेन के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। अगर वुमेन को भी इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो दिन दूर नहीं है कि भाई साहब महिलाएं अपना घर खुद चलाए, है ना, दे विल बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। और ये अगर हो गया तो ये जो हमारे समाज में चला आ रहा है कि द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर ब्रेड विनर्स, ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसका डिसॉल्व होना जरूरी है। जब तक ये चलता रहेगा कि मेल मेंबर्स कैन ओनली बी द ब्रेड विनर्स ऑफ अ फैमिली, तब तक भाई साहब वुमेन का शोषण होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप फिर वुमेन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, घर के काम काज करने वाले की तरह, और घर में काम काज बनने के लिए क्या ही पढ़ाना और क्या ही लिखाना। अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो उनको अपने अधिकार मालूम नहीं होंगे, उनको अपने अधिकार मालूम नहीं होंगे तो उनका शोषण होगा भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए एक तरीका होता है प्रॉब्लम को डील करने का कि पनिशमेंट स्कीम्स आप लॉन्च कीजिए, ठीक है। अगर भाई साहब कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो देन यू विल बेसिकली पनिश करेंगे आप इन लोगों को, ठीक है, यू विल बेसिकली पनिश देम। अगर दहेज उत्पीड़न का मामला आया, भ्रूण हत्या का मामला आया, ये ऐसा कुछ भी हुआ, वुमेन के ऊपर अत्याचार का मामला आया, ये सब पे आप पुलिस एक्शन लेंगे। लेकिन क्या पुलिस एक्शन लेने से ही समाज में इन सब गतिविधियों का खात्मा हो जाएगा? नहीं हो रहा है ना। तो आपको कुछ इंटरनल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। और इंटरनल चेंजेस कब लाएंगे? जब आप वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% वुमेन को खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। और मैं ये कोई जेंडर बेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं वुमेन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मेन के लिए भी यही बोल रहा हूँ। मेन में भी ऑलमोस्ट 60 to 70% मेन को खाना बनाना नहीं आता है। किसी भी जेंडर में यही होगा। खाना बनाना एक आर्ट है, सबको वो नहीं आता रहेगा, ठीक है। लेकिन 9 साढ़े 9 बजे के बाद आधा भारत रोटी बेल रहा है ना, यही है हकीकत। तो यही है, आपको खाना बनाना आए या ना आए, आपको भाई साहब चूल्हा चौका करना पड़ेगा इफ यू आर अ वुमेन। क्लियर है? आप भाई साहब जॉब पे जाए या कोई काम करें, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेली करिकुलम। दैट्स व्हाट द इंडियन सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सोचो, समझ लो ये बिल्डिंग है ना, 100 फैमिलीज हैं, 100 फैमिलीज हैं, और इस बिल्डिंग में 100 फैमिलीज में से जैसे मैंने आपको बताया कि 80% वुमेन को खाना बनाना नहीं आता है। ये 100% सच है। और मैं वुमेन के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी भी जेंडर में ऐसा ही होगा, ठीक है। मेन में भी इतना ही होगा, ठीक है। आप अगर देखोगे ज़्यादा करके होटल में शेफ्स कौन है? मेन ही तो हैं, है ना। तो मतलब उनको खाना बनाना आता है और अच्छा खासा बनाना आता है, वरना तो वुमेन होते शेफ्स। मोस्टली द शेफ्स आर मेन, सो इट मीन्स इन होटल्स, इन बिग होटल्स मोस्टली द शेफ्स आर मेन। तो मतलब खाना बनाना ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मेन नहीं कर सकते हैं, है ना। दे कैन डू इट, दे आर एक्सपर्टीज इन डूइंग इट एंड दे आर हायर्ड फॉर डूइंग इट एज वेल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, समझ लो ये बिल्डिंग है, 100 लोग यहाँ पे रहते हैं। किसी प्रॉब्लम को ऐसे सोचना है, 100 लोग यहाँ पे रहते हैं, 100 फैमिलीज रहती हैं, इनमें से समझ लो 80% को खाना बनाना नहीं आता है। 80% वुमेन मतलब 80 वुमेन को खाना बनाना नहीं आता है, 20 को खाना बनाना आता है और उनको खाना बनाने में इंटरेस्ट भी है। तो
इन 100 लोगों के फैमिली का खाना एक जगह ही बनने दो और लेट 20 वुमेन हैंडल इट, लेट द रिमेनिंग 80 वुमेन बी एम्प्लॉयड समवेयर एल्स। वो कुछ और कर सकते हैं जीवन में जो अच्छा है, वो किसी एम्ब्रॉयडरी का काम कर सकते हैं, वो किसी टीचिंग का काम कर सकते हैं, वो मेडिकल प्रोफेशनल में हो सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम चीजें जहां पे इनकम जनरेट हो सकता है। कैन दिस बी डन? इट कैन बी वेरी वेल डन, है ना। सो इस तरह से हमने सोचा ही नहीं है। अगर आप भाई साहब वुमेन हैं तो बावजूद इसके कि आप भाई साहब कोई बड़ी नौकरी कर रहे होंगे, बावजूद इसके कि आप भाई साहब कुछ और मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन घर में चूल्हे चौके का काम आपको करना पड़ेगा, जग मार के करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। एंड दैट इज अ बैड माइंडसेट ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट, देखो हम जैसे बोल रहे हैं कि पनिशमेंट एक स्कीम होता है। अगर वुमेन पे कोई अत्याचार हुआ तो उसके अगेंस्ट पनिश करना ठीक है, हम उस चीज को काबू में ला सकते हैं, लेकिन जब तक हम पैरेलल कोई और चीज जनरेट नहीं कर रहे हैं तो पूरा वो चीज काबू में नहीं आएगा, ठीक है। पैरेलल क्या जनरेट करना है भाई साहब? पैरेलल आपको वुमेन रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। पहले भाई साहब आप जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे वो मेन रिलेटेड होते थे। आज की तारीख में वुमेन रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जरूरी हो गया है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे जहां पे भाई साहब आपका कंप्यूटर रिलेटेड काम है या बैठ के काम है, उन सब जगहों पे 50% ऑफ सीट्स आर फॉर मेन एंड 50% आर फॉर वुमेन। ऐसा ही हो गया है ताकि वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अगर वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तभी जाकर भाई साहब उनका शिक्षा भी बढ़ेगा और तभी जाकर ये सारे बाकी चीजें भी कंट्रोल में आएंगी। प्रमिला दंडावते established the Mahila Dakshata Samiti in Delhi in 1976 and its branches came up in multiple states in the nation. Research on women issues undertaken at various levels in various universities helped in critical analysis and in developing a vision on women's issues. हाँ बेटा, so ठीक है। रिसर्च ऑन वुमेन्स इश्यूज, तो आपके वुमेन्स इश्यूज पे काफी सारा रिसर्च हुआ, अंडरटेकन एट वेरियस लेवल्स। ये भी वैसा डाउन है, आउट है। तो काफी सारे, आप लोग इतने आलसी हैं ना भाई साहब, आप लोगों को कितना भी मैं बोलता रहूं आप सुधरेंगे नहीं। कैसा भी करके पढ़ाया जाए आप मतलब वही है, 5-6 घंटा स्कूल में टाइम पास करके आने का, थोड़ा बहुत क्लास में जाके टाइम पास करके आने का, पूरा जीवन आपके टाइम पास मोड पे चल रहा है भाई साहब। कब तक चलेगा ये पता नहीं। आपको मतलब आपको एक हफ्ते पहले सिलेबस आ गया है लेकिन आप उसको भेज नहीं पा रहे हैं। एक विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन सेंड इट। अभी ऐसे ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा, 3-3 घंटे का क्लास मुझे लेना पड़ेगा, कीजिए आप अटेंड। अभी आप लोग सिलेबस भेजते नहीं है, टाइम टेबल भेजते नहीं है, कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। मैंने ग्रुप में बोला है, आप मेरे को पर्सनली भेजिए। रिसर्च ऑन वुमेन्स एसोसिएशंस, खड़े हो जा, स्टैंड अप। और जो भी मेरे को सोता दिख रहा है उठा दूंगा मैं अभी। यू डिजर्व दिस। Research on women's issues undertaken at various levels in various universities helped in critical analysis. Women Studies Center established हुए भाई साहब। आज की तारीख में भी SNDT यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइमरली वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से आज भी ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के एजुकेशन को ही फेवर करती है, ठीक है। अदर इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज विच इज लोकेटेड इन मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी जो कोल्हापुर में लोकेटेड है, ठीक है। ये सारे यूनिवर्सिटीज डेडिकेटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन है, ठीक है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। In 1975, the government of India formed the Committee of Status of Women under the chairmanship of किसका क्या? फुलरेनु गुहा, ओके, डॉक्टर फुलरेनु गुहा। In 1980, तो ये 1975 में ये कमिटी फॉर्म हुई। क्यों? क्योंकि यूएन ने 1975 को वुमेन्स ईयर डिक्लेयर किया। 1975, द ईयर 1975 वाज डिक्लेयर्ड एट द वुमेन्स ईयर, ठीक है। ओके, इन 1980 द कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड महिला दक्षता समिति, अखिल भारतीय, तो इसमें भाई साहब आपका अखिल भारतीय जनावधि महिला संगठन। इसमें आपका रॉन्ग पेयर क्या हो जाएगा? ज्योति मापसेकर, दैट इज वुमेन्स कमीशन। Explain the statements with reason the women's liberation movement began. The United Nations had declared 1975 as the International Women's Year. तो ये Women's Year हुआ तो obviously जितने भी countries संयुक्त राष्ट्र संगठन के पार्टिसिपेंट हैं या यूएन में पार्टिसिपेंट हैं, they will have to come up with programs in which they will showcase their attempts made for the development of women in their country. ठीक है? Peace, development and equality between men and women were the three aspects of this program. तो पीस, ठीक है, शांति, डेवलपमेंट और इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये तीन भाई साहब
प्राइमरी उद्देश्य थे इस प्रोग्राम के। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर फुलरेनू गुहा इन 1975। ये सब आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, इस तरीके से आपका आंसर बनता है पॉइंट वाइज, ठीक है। तो 1975 में यूएन ने इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर डिक्लेयर किया, जिसके चलते डॉक्टर फुलरेनू गुहा के अंडर एक कमिटी फॉर्म हुई। इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। दीज आर द पॉइंट्स दैट नीड टू बी देयर इन योर आंसर, ठीक है। अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे वाज कंडक्टेड रिगार्डिंग सेवरल इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज पे एक सर्वे हुआ, जैसे सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन। इसको जरा हाथ को नीचे रखिए तो नींद कम आएगी। सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन, देयर स्टेटस, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर वुमेन, ठीक है। क्या क्या प्रोविजंस है एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कि वुमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नियम है या नहीं, और अगर उन नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन एंड इट्स परसेंटेज, डिफिकल्टी फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, द पोजीशन ऑफ वुमेन एट वर्क, their relative wages, the female male ratio, birth and mortality rates and the role of women। इन सब तमाम मुद्दों पे भाई साहब विचार विमर्श हुआ, ठीक है। In view of the background, स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति organized a state-wide conference for women in 1975. The committee published its manifesto in 1978 and the policy of struggle against discrimination based on gender, caste and varna was adopted. Thus, women liberation movement began। तो 1978 तक ऐसा होता था कि कंपनीज में मेल्स को ज़्यादा पैसे मिलते थे, फीमेल्स को उसी काम के लिए कम पैसे मिलते थे, ठीक है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, ऑन द बेसिस, और इसीलिए भाई साहब ये अडॉप्ट किया गया फिर से, अगर काम सेम है तो सेम पगार मिलेगी दोनों को भी, ठीक है। लॉज फॉर वुमेन, द लॉ इनैक्टेड इन 1952 recognizes women's right to alimony and their share in the father's property, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज एलिमनी? वुमेन लोगों को तो ज्यादा जगे हुए रहना चाहिए क्योंकि उनके बारे में है ये, ओके। व्हाट इज बेसिकली एलिमनी? एनीबडी? व्हाट इज एलिमनी? हाँ, खर्चा। किसके बारे में खर्चा? खर्चा कैसा खर्चा? नहीं, व्हाट इज एलिमनी? खर्चा है समझा मैं, लेकिन एलिमनी क्यों बोल रहे हैं हम? खर्चा है, यस। एलिमनी डेफिनेटली रेफर्स टू योर एक्सपेंसेस, बट व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस? हाँ बोलिए, एनीबडी? अरे कोशिश तो कीजिए भाई साहब, किसी ने तो बोला। एलिमनी मतलब क्या होता है? अगर, हाँ, हक तो सभी है, हक तो सभी है, ओके। देखो, अगर डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, तो डिवोर्स देने पे आपको अपने पत्नी को एलिमनी देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझो, अगर किसी ने शादी की और उसने डिवोर्स दे दिया, ठीक है, somebody has married and he gave divorce, डिवोर्स के चलते क्या हो जाएगा भाई साहब? what will happen? ये स्त्री तो भाई साहब, जो लड़की थी वो तो भाई साहब आउट, ठीक है। अभी लड़की अगर शिक्षित नहीं होगी, लड़की के पास अगर नौकरी पैसा नहीं होगा, तो वो अपना घर कैसे चलाएगी? तो इसीलिए हस्बैंड को हर महीने अपने सैलरी का एक परसेंटेज एज एन एलिमनी देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एलिमनी, ठीक है, फॉर कवरिंग हर एक्सपेंसेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एलिमनी, ठीक है। और राइट टू फादर्स प्रॉपर्टी, तो फादर्स प्रॉपर्टी में भाई साहब राइट था सबका, ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ। everybody was given the right to father's property, okay। So people, what is alimony? Alimony is when a husband divorces his wife, so she is entitled to her expenses, ठीक है, और इसको अपने सैलरी से वो शेयर देना पड़ेगा। that is called alimony and their share in the father's property, और फादर के प्रॉपर्टी में भी उनका शेयर बनता है। जैसे फादर की जो प्रॉपर्टी होगी वो इक्वली डिवाइड होगी between the sons and the daughters, however if the daughters don't need it they can sign on it, ठीक है, ऐसा होता है जनरली, ठीक है। राइट टू स्त्रीधन बोलते हैं हम इसको। पॉलीगैमी वाज मेड इलीगल एंड वुमेन गॉट द राइट टू डिवोर्स, ठीक है। पॉलीगैमी मतलब एक ही इंसान 4-5 शादियां कर रहा है, दिस वाज एबॉलिश्ड इन इंडिया, ठीक है। यू कैन नॉट मैरी 2 or 3 वुमेन एट वंस, ठीक है। एंड वुमेन गॉट द राइट टू डिवोर्स एज वेल, वुमेन को भी राइट टू डिवोर्स दिया गया, सिर्फ मेन नहीं, वुमेन को भी, ठीक है। इसके लिए एक कार्यक्रम चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? एनीबडी?
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जहाँ पे डिवोर्स आपका सिर्फ बोलने से ही हो जाता है, उसके अगेंस्ट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ फाइट दैट इज़ गोइंग ऑन। काफ़ी बहुचर्चित विषय है ये। किस चीज़ का ज्ञान है पता नहीं भाई साहब, ना साइंस, ना जो सोशल में चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है उसका भी ज्ञान नहीं है। इन चीज़ों से आप जूझेंगे, आप जब एक बार उतरेंगे ना मार्केट में, तब इन चीज़ों से आपको जूझना पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर बहुत लड़ाई चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत मतलब पूरे इंडिया में एक मैरिज एक्ट होता है जिसको हम हिंदू मैरिज एक्ट बोलते हैं। अब ये हिंदू मैरिज एक्ट मतलब हिंदूज़ के लिए नहीं, ये सब पे एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हर ब्याह का या हर विवाह का एक रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, और डिवोर्स के पहले कॉमन प्रोसीडिंग्स होगी। तो हमारे इंडिया में हमारा एक डिवोर्स इनकरेजिंग सोसाइटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मतलब काउंसलिंग होती है। अगर कपल में से किसी एक ने भी या दोनों ने भी मिलकर डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया है, देन दे विल हैव टू बेसिकली विजिट अ काउंसलर। ये काउंसलर उनको 1 साल तक हर महीने उनको बुलाता रहेगा, जैसा जैसा उनका रहेगा। ये काउंसलर उनको बेसिकली सुझाव देगा और 1 साल तक उनको एक साथ रहना है। डिवोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी 1 साल तक कपल्स को एक साथ रहना है। उसके बाद डिवोर्स मैटर कोर्ट में जाएगा, उसके बाद डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चालू होंगी। बच्चे कैसे जाएंगे, एलिमनी कैसे डिसाइड होगा, ये सब प्रोसीडिंग्स चालू होंगी, ठीक है। तो डिवोर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट इन इंडिया, और ये कॉन्सेप्ट जो है हिंदूज़ पे एप्लीकेबल है, क्रिश्चियंस पे एप्लीकेबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो अगर 3 बार तलाक बोलती है तो तलाक हो जाता है, ठीक है। अगर हस्बैंड ने 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया, फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोलने से ही हो जाता है, जिसको मतलब उनके धर्म ने मान्यता दी है। और इसी चीज़ को भाई साहब अभी लड़ाई की जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि आपका भाई साहब सब पे एक ही मैरिज एक्ट, जो भी विद इन इंडिया रह रहा हो सब पे एक ही मैरिज एक्ट लागू हो, ठीक है। सब पे डिवोर्स के प्रोसीजर सेम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस धर्म के हैं, आप इस संप्रदाय के हैं तो आप पे डिवोर्स के प्रोसीजर्स अलग लगेंगे, ऐसा नहीं। एवरीबडी शुड बी अंडरगोइंग द सेम डिवोर्स प्रोसीजर्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो ये डिवोर्स के प्रोसीजर्स हैं जिस पे लड़ाई चल रही है। और आप जैसे हमने बोला है कि यूपी जो है ज़्यादा करके हिंदुज़म ज़्यादा है वहाँ पे, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। ताज्जुब की बात यह है कि यूपी में एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, जो मोहम्मदन कम्युनिटी का है, वो यूपी गवर्नमेंट को गया ड्यूरिंग स्टेट इलेक्शंस। और इसका रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई साहब बीजेपी गवर्नमेंट को क्यों गया, क्योंकि बीजेपी इज़ टेकिंग दिस केस अप कि भाई साहब इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए मतलब ये कि आप चाहे हिंदू हो, चाहे कैथलिक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी हो, आप पे डिवोर्स एक्ट सेम हो। ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से आपको भाई साहब लगा कि 3 बार तलाक बोलेंगे चलो तलाक हो गया, अभी तुम देख लो भाई साहब दूसरा कुछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो औरत जो भाई साहब इतने सालों से घर पे है और जो आपकी परिवार की सेवा कर रही है, उसको आप कल उठ के बोलोगे तलाक, तो तलाक हो जाएगा, ठीक है। हाउ वेयर विल शी गो। वो भाई साहब अभी उसको मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसने कोई जॉब नहीं किया है, वो आपकी सेवा कर रही थी और अभी अचानक से आपने उसको तलाक बोल दिया क्योंकि आप किसी और से शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। वो तो ऐसा सेंसस निकाला गया कि भाई साहब जब यूपी में इलेक्शंस हुए तो यूपी में एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक था, बहुत बड़ा जो वोट था वो मोहम्मदन कम्युनिटी से आया था। तो ऐसा तो सरप्राइजिंग हो गया भाई साहब लोगों के लिए। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि बहुत बड़ा एक डिवोर्सी सेक्शन था, ठीक है, बहुत बड़ा एक डिवोर्सी सेक्शन था जो मोहम्मदन कम्युनिटी से था, ठीक है। इन लोगों को सिर्फ तलाक 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 बोलकर तलाक दे दिया गया है। ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो इन लोगों ने बीजेपी गवर्नमेंट के लिए वोट दिया क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड ये होते हैं। इनको भाई साहब तुम 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अगर किसी लेडी को आप बोलेंगे तलाक जाओ भाई देख लो तुम अपना, वो कहाँ जाएगी, ठीक है। उसने भाई साहब 20 साल तक इस फैमिली की परवरिश की, 20 साल तक इस फैमिली का देखभाल किया और वो अशिक्षित है, वो भाई साहब पढ़ी लिखी नहीं है, उसने कोई जॉब नहीं किया है, तो तुम इस उम्र में उसको बोलोगे दाओ तलाक, कहाँ जाएगी वो। तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इस तलाक टाइप से पीड़ित है, जिनको तलाक दे दिया गया है। इनके पास भाई साहब करने को कुछ नहीं है, ठीक है। सो वेयर विल दे गो, व्हाट विल दे अर्न,
हाउ विल दे सपोर्ट देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो जाता है तो ये एक बहुचर्चित विषय है और इस पर काफी सारा डिबेट भी होता है। पॉलीगैमी वाज मेड इलीगल एंड वुमेन गॉट द राइट टू डिवोर्स। पॉलीगैमी मतलब एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरे से ब्याह कर रहे हैं, तीसरे से ब्याह कर रहे हैं, मतलब राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पॉलीगैमी वाज अबॉलिश्ड, पॉलीगैमी वाज इलीगल एंड वुमेन गॉट द राइट टू डिवोर्स। तो वुमेन को भी अभी राइट मिल गया डिवोर्स देने के लिए। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 मेड बोथ गिविंग एंड टेकिंग अ डाउरी अ कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हुआ 1961 में और इसमें दहेज लेना और दहेज एक्सेप्ट करना दोनों भी भाई साहब क्या हो गया, बोथ वेर मेड अ कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस, बोथ वेर मेड अ पनिशेबल क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। The Maternity Benefit Act gave women the right to get leave from work at the time of childbirth came into force in 1961. तो अभी जितने भी वुमेन जो थे वो जो काम कर रहे थे अलग अलग जगहों पे तो उनको मैटर्निटी बेनिफिट्स मिलने लगा। मैटर्निटी बेनिफिट्स मतलब क्या, अगर वो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो उनको 3 महीने का लीव मिलता है, ये सारे लीव्स हैं, ठीक है, तो उनको देने जाने लगे। ओके, अवेयरनेस अगेंस्ट डाउरी ट्रेडिशन। Despite the enactment of Dowry Prohibition Act of 1961, various incidents like the following were still reported. तो डाउरी दहेज लेना या दहेज मांगना दोनों ही अपराध है, ठीक है। दहेज देना भी अपराध है और दहेज मांगना भी अपराध है, उसको एक्सेप्ट करना भी अपराध है, कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस है। डिस्पाइट इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के बावजूद भी बहुत सारे रिपोर्टेड केसेस हुए। वुमेन बर्न्स टू डेथ एज सारी पल्लू कैचेस फायर व्हाइल कुकिंग। बस अब रिपोर्ट में आया कि वन वुमेन वाज बर्न्ड टू डेथ बिकॉज वाइल शी वाज कुकिंग, उसके साड़ी के पल्लू में आग लग गया। लेकिन इस साड़ी के पल्लू में आग एक्सीडेंटली नहीं लगा है, लगाया गया है, ठीक है, उसके फैमिली वालों ने लगा दिया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हो सकता है लड़की के जो माँ बाप थे दे वर नॉट एबल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट ऑफ डाउरी बिकॉज ऑफ व्हिच शी वाज बर्न्ड अलाइव, ठीक है। वुमेन स्लिप्स इनटू वेल व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स, ड्राउन्स एंड डाइज। जो भाई साहब आराम से कपड़े रोज धोती थी, अचानक भयानक में वो कुएं में गिर गई और मर गई। गिरी नहीं, उसको गिराया गया है, ठीक है। अगेन दिस वाज अ केस ऑफ डाउरी डेथ। ऐसे बहुत सारे रिपोर्टेड होने लगे। द रोल ऑफ पुलिस, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी वे हाईलाइटेड। भाई साहब कर क्या रहे हैं पुलिस, ठीक है, या जुडिशरी क्या कर रही है। डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984 केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट्स हो गए भाई साहब। फैमिली कोर्ट्स डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ डोमेस्टिक मैटर्स। तो डोमेस्टिक मैटर्स इंक्लूडिंग डिफरेंसेस विद इन मैरिज। तो क्या डिफरेंसेस है भाई साहब मैरिज में, ठीक है, डिफरेंसेस विद इन मैरिज, सेपरेशन, ठीक है, सिंगल पेरेंटहुड, एलिमनी, केयर ऑफ चिल्ड्रन, ओनरशिप, ठीक है, ये सब हो गया भाई साहब डिफरेंसेस विद इन मैरिज। क्या क्या डिफरेंसेस हैं विद इन मैरिज, सेपरेशन, सिंगल पेरेंटहुड, ठीक है, ये आपके डोमेस्टिक मैटर्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैरिज। तो मतलब अगर मैरिज में कोई डिफरेंसेस हैं तो आप फैमिली कोर्ट में इसको सेटल कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन का केस चल रहा है भाई साहब, डिवोर्स होने का मामला आ गया है, ठीक है। सिंगल पेरेंटहुड, सिंगल पेरेंटहुड मतलब कोई सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट मतलब हस्बैंड नहीं है या वाइफ नहीं है और सिर्फ बच्चे के साथ पेरेंट रह रहे हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट। एलिमनी, एलिमनी का मामला भाई हस्बैंड के साथ ये तय हुआ था डिवोर्स एग्रीमेंट में कि हर महीने इतना एलिमनी वाइफ को देना है, लेकिन अभी वो नहीं दे रहा है, तो ये इसका रिपोर्टिंग कहाँ पे होगा, फैमिली कोर्ट में। केयर ऑफ चिल्ड्रन, कौन चिल्ड्रन का केयर टेक करेगा आफ्टर द डिवोर्स, हु विल टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। ओनरशिप, ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब आपके फैमिली कोर्ट में सेटल होती हैं। फैमिली कोर्ट्स प्रिफर्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन ओवर विटनेसेस एंड काउंसलर्स टू एडवाइस इंस्टेड ऑफ लॉयर्स। तो यहाँ पे भाई साहब कोई वैसे जैसे क्रिमिनल केस चलता है वैसा केस नहीं चलता है, फैमिली कोर्ट बड़ी अंडरस्टैंडिंग से चलती है। यहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, लॉयर्स नहीं होते आपके केस को फाइट करते हुए, ठीक है, होते भी हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट वैसे नहीं चलता जैसे कोई क्रिमिनल सेटअप चलता है या क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन चलता है, वैसा नहीं चलता, ठीक है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है, ठीक है, क्योंकि फैमिली के लोग ही इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। फैमिली कोर्ट्स रिजॉल्व इश्यूज जस्टली एंड स्विफ्टली, जल्दी से जल्दी इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं फैमिली कोर्ट्स। ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमनी, 1985 में एक ट्रायल हुआ था। A fixed amount paid to a married woman for her upkeep by the husband who has divorced her is called alimony. तो जब वुमेन को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, बाय आवर हस्बैंड, डिवोर्स वुमेन को एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिमनी, ठीक है। एक बार डिवोर्स हो गया तो वुमेन को जो अमाउंट मिलता है उसके हस्बैंड से, दैट इज नोन एज एलिमनी, ओके। इन केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान
वर्सेस शाहबानो बेगम, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट शाहबानो वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव एलिमनी। तो यहाँ पे भाई साहब ये मोहम्मदन कम्युनिटी में का एक केस था जहाँ पे डिवोर्स हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया कि भाई साहब शाहबानो बेगम को एलिमनी मिलना चाहिए, शी शुड बी रिसीविंग एलिमनी। ठीक है, ड्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्डिक्ट इन शाहबानोज केस द मुस्लिम वुमेन्स एक्ट वाज एनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो मुस्लिम वुमेन एक्ट इनैक्ट हुआ भाई साहब गवर्नमेंट में। ठीक है, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, सती मतलब मालूम है ना, व्हाट वाज सती? सती मींस व्हेन वुमेन वेयर बर्न्ट अलाइव, ठीक है, एट द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। ये जबरदस्ती का प्रथा था भाई साहब। ठीक है, तो चिता जल रही है हस्बैंड की, उसी में जिंदा आपके भाई साहब स्किन पे अगर एक थोड़ा सा मोम गिर जाए, थोड़ा सा भाई साहब वैक्स गिर जाए तो कितना जोर से जलन होता है ना। और सोचिए किसी जिंदा इंसान को पूरी तरह से जला दिया जाए, व्हाट मस्ट बी द पेन दैट शी इज गोइंग थ्रू। ठीक है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, सती प्रिवेंशन एक्ट का कमीशन, रूप कंवर कमिटेड सती ऑन 4th of September 1987, बहुत पुरानी बात नहीं है, 4th of September 1987 में सती प्रथा फिर से देखा गया। ठीक है, शी कमिटेड सती। वुमेन एक्टिविस्ट लाइक मीना मेनन, गीता सेशु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ एंड कल्पना शर्मा इन्वेस्टिगेटेड द केस। ठीक है, गवर्नमेंट पास द सती प्रिवेंशन एक्ट इन 1988, सती को पूरा बैन किया गया, इट शुड नेवर बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज क्रिएटेड and the Protection of Human Rights Act was passed in 1993 to prevent injustice to men and women। तो ह्यूमन राइट्स का एक्ट पास हुआ और ये ह्यूमन राइट्स की टीम जो है तो अलग अलग जगहों पे जाती है, ये जेल्स में जाती है, ऑफिसेज में जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं पे आप 6 घंटा बोल के 16 घंटा तो नहीं काम करवा रहे हैं, जेल में आप 4 टाइम की जगह पे 1 टाइम खाना तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स विच आर इन्वेस्टिगेटेड बाय ह्यूमन राइट्स। ठीक है, द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज आल्सो फॉर्म्ड ऑन द सेम लाइंस टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पीपल एट द स्टेट लेवल। द लॉ डील्स विद कलेक्टिव ऑपरेशन, ठीक है, इंप्रूविंग द सोशल कंडीशन ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन, एंश्योरिंग सिक्योर वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन एक्सेट्रा। ये सारी चीजों पे भाई साहब लॉ काम करता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन मिटिगेटिंग इनजस्टिसेस टू वुमेन। तो जहां पे भी भाई साहब इनजस्टिस हुआ है वुमेन के साथ, उसको भी भाई साहब ये ठीक करता है। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, जस्ट वन मोमेंट यार, इन लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ठीक है, तो एक काम होगा भाई साहब रिजर्वेशन, मतलब देखो जब तक वुमेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स वुमेन खुद लेकर नहीं आएंगे तब तक इन प्रॉब्लम्स पे कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, सो रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 1/3 सीट्स ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वे रिजर्व फॉर वुमेन। तो आपके जितने भी लेवल्स पे इलेक्शन होते थे, जैसे जिला परिषद हो गया, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, पंचायत समिति के, ग्राम पंचायत के, यहाँ पे 1/3 ऑफ सीट्स वाज रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, इट वाज केप्ट रिजर्व फॉर वुमेन एज पर द 73rd and 74th अमेंडमेंट्स। वुमेन thus could stand for political posts like सरपंच, चेयरमैन, मेयर, ये सब के लिए भाई साहब वुमेन। महाराष्ट्र एंड 15 अदर स्टेट्स रिजर्व 50% सीट्स फॉर वुमेन। ठीक है, इन्होंने जाकर 50% सीट्स जो है तो वुमेन के लिए रिजर्व किया। ठीक है, ओनली वुमेन कैन बी अपॉइंटेड हियर। रिजर्वेशन हैज मेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोशल कम्युनिटीज एंड बिजनेस मोर कॉमन। वुमेन गॉट एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट टू वोट। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे लॉज रिलेटेड टू वुमेन, राइट टू एलिमिनी, 73rd and 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या हुआ भाई साहब, 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वेरियस पंचायत इलेक्शंस, म्युनिसिपल इलेक्शंस एक्सेट्रा वर रिजर्व फॉर वुमेन। राइट टू एलिमिनी मीन्स व्हाट? expenses to be paid by a divorcee woman by her husband to her। ठीक है, मुस्लिम वुमेन्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। मुस्लिम वुमेन्स एक्ट में मतलब पॉलीगैमी को भाई साहब बैन किया गया, एक इंसान एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, सो आपके लॉज रिलेटेड टू वुमेन, राइट टू एलिमनी, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1984 में आया भाई साहब। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961 में और डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1984 में। इस एक्ट के तहत अगर किसी भी वुमेन का ससुराल में कोई एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ होता है तो उसका भाई साहब इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, कुएं में गिर गई या उसके साड़ी में आग लग गई भाई साहब, जलकर मर गई, ये ऐसा कुछ भी होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा भाई साहब कि कहीं ये दाउरी से रिलेटेड डेथ तो नहीं है। ठीक है,
ओके, मुस्लिम वुमेन्स एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट 1988 में लॉन्च हुआ भाई साहब, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट दैट वाज लॉन्च्ड इन 1993, जिसके तहत क्या हुआ कि भाई साहब जितने भी आपके मेन एंड वुमेन एम्प्लॉयड थे अलग अलग जगहों पे, उनको सेम तरीके का वर्क एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, सेम तरीके की सैलरी मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक 1961 में, ये सारे जो है तो एक्ट्स हैं जो वुमेन के लिए लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। दीज वेर सर्टेन प्रोविजंस मेड फॉर द वुमेन, राइट। शॉर्ट नोट्स ऑन फैमिली कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स बेसिकली सेटल फैमिली डिस्प्यूट्स, और ये स्पीडी कोर्ट्स होते हैं। मतलब जैसे देखोगे अगर आपके जितने भी लीगल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनको डिसाइड करने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन फैमिली कोर्ट्स फटफट डिसीजन देते हैं, और ये मतलब कोई लॉयर का वो नहीं, ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तुम अपने ही परिवार के अगेंस्ट में किस लॉयर को खड़े करोगे भाई साहब, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में भाई साहब सेपरेशन का सीन चल रहा है, क्या लॉयर आके क्या करेगा उसमें, ठीक है। तो ये आपसी द गवर्नमेंट सेट अप फैमिली कोर्ट्स टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग ऑफ डोमेस्टिक मैटर्स व्हिच इंक्लूडेड डिफरेंसेस विद इन मैरिज, separation, single parenthood, alimony, care of children, ownership among others related to the household। तो गवर्नमेंट ने ये फैमिली कोर्ट सेटअप किए हैं, और फैमिली कोर्ट्स में ये सारे मामले भाई साहब होते हैं, ठीक है। डिवोर्स का मामला, लेट्स से सिंगल पेरेंटहुड का मामला, एलिमनी का मामला, ठीक है, केयर ऑफ चिल्ड्रन का मामला, ओनरशिप का मामला। द फैमिली कोर्ट्स प्रिफर्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन ओवर विटनेसेस एंड काउंसलर्स टू एडवाइस इंस्टेड ऑफ लॉयर्स, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये ज्यादा चलते हैं। They basically operate more on mutual understanding rather than advice of lawyers. The objectives of family courts was to resolve issues justly as well as swiftly, thereby ensuring maximum efficiency. तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई साहब, जस्टली रिजॉल्व करना और फटाफट रिजॉल्व करना, thereby ensuring maximum efficiency, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज क्रिएटेड and Protection of Human Rights Act was passed in 1993 to prevent injustice to men and women, ठीक है। In some states the State Human Rights Commission was also set up on the same lines to protect people at state level. The law deals with collective oppression, improving the social condition of divorced women, ensuring secure workplaces for women, ये सब चीजें थी भाई साहब, ठीक है। It also played an effective role in mitigating injustices to women, ठीक है, मिटिगेटिंग इनजस्टिसेस टू वुमेन, ये सब चीजें थी भाई साहब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। रिजर्वेशन फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 1/3 सीट्स ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समितिज, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वेर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। 1/3 ऑफ द सीट्स वेर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक है। वुमेन दस कुड स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट लाइक सरपंच, चेयरमैन एंड मेयर, क्योंकि जब तक आप वुमेन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल में नहीं इंक्लूड करेंगे तब तक उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो भाई साहब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और चाहे भाई साहब यूनियन गवर्नमेंट हो, और इसीलिए इनके सीट्स रिजर्व किए गए इन सारे पोस्ट पे, ठीक है। महाराष्ट्र एंड 15 अदर स्टेट्स रिजर्व 50% सीट्स फॉर वुमेन, तो महाराष्ट्र में 50% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे काफी सारे वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं इलेक्शंस के लिए। रिजर्वेशन हैज मेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोशल कम्युनिटीज एंड बिजनेसेस मोर कॉमन, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज एनैक्टेड इन 1984, डिस्पाइट द एनैक्टमेंट ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, वेरियस इंसिडेंट्स लाइक बहुत सारे, देखिए पहला क्या हुआ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हुआ 1961 में, इसके तहत डाउरी देना और लेना दोनों भी क्रिमिनल ऑफेंस माना गया, ठीक है। ये तो बात खत्म हो गई, चलिए कोई मांगेगा भी नहीं और कोई देगा भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा था। और अगर डाउरी टाइम पे नहीं आया तो क्या क्या हो रहा था, लड़कियों को जलाया जा रहा था, उनका भाई साहब एक्सीडेंट्स करवाया जा रहा था, ठीक है। डेथ एज सारी पल्लू कैचेस फायर व्हाइल कुकिंग, वुमेन स्लिप्स इनटू वेल व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स, ड्राउन्स एंड डाइज, ये सब भाई साहब रिपोर्टिंग होने लगी। वुमेन्स की अचानक से एक्सीडेंटल जो डेथ्स हैं वो ज्यादा होने लगी, तो ऑब्वियसली बात है ये किस लिए हो रहा होगा, डाउरी रिलेटेड था, ठीक है। तो इसके लिए फिर से एक एक्ट आया, दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट दैट केम इनटू फोर्स इन 1984। मतलब ससुराल में हुए हर यंग लड़की की जो ब्याही हुई है, ठीक है, उसका डेथ का इन्वेस्टिगेशन होगा, वेदर इट इज डाउरी इंस्टिगेटेड और नॉट, ठीक है। ओके, इन दीज केसेस इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिवील्ड दैट डाउरी वाज द प्राइम रीजन, ठीक है। द रोल ऑफ पुलिस, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी वाज ब्रॉट टू लाइट, और इसके लिए फिर से अमेंडमेंट हुआ, देखो
ठीक है। पहले तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लॉन्च हुआ 1961 में, और इसी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद डाउरी लेना और देना डायरेक्टली बंद हो गया, लेकिन उसके चलते जो क्राइम हो रहा था वो बंद नहीं हुआ, और इसके लिए भाई साहब ये लॉन्च किया गया, ठीक है। In 1988, the government passed the Sati Prevention Act with very stringent provisions, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या पास किया भाई साहब? सती प्रिवेंशन एक्ट पास किया with very stringent provisions, बहुत सारे stringent provisions लगा दिए, ठीक है। ओके, on the 4th of September 1987, रूप कंवर, a married woman, was coerced into committing sati, ठीक है। मतलब इनको फोर्स किया गया था सती के लिए, ठीक है। This incident highlighted that women were still forced to commit sati. The practice of sati was, as well as glorifying or promoting it, was illegal and punishable. तो सती प्रैक्टिस करना तो इलीगल था ही और पनिशेबल था ही, प्लस अगर आप सती को इनकरेज कर रहे हैं तो भी इलीगल और पनिशेबल होगा। उनको कोई पानी दे दो, पानी चाहिए, पानी है, पानी प्लीज, वाटर वाटर वाटर, आराम से, ठीक है। सो दिस इंसिडेंट हाईलाइटेड दैट वुमेन वे स्टिल फोर्स्ड टू कमिट सती, वुमेन को जबरदस्ती सती कमिट करवाया जा रहा था। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज वेल, तो अगर आपने सती को प्रैक्टिस किया या सती को इनकरेज भी किया तो दोनों भी गुनाह है, ठीक है, दोनों भी गुनाह है। ग्लोरीफाई किया, अरे देखो उन्होंने सती कमिट किया है भाई साहब, क्या वाओ, ऐसा अगर कुछ बोला आपने, सो इट वाज आल्सो पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। सेवरल एक्टिविस्ट्स इंक्लूडिंग मीना मेनन, गीता सेशु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ एंड कल्पना शर्मा पुट एफर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेटेड द केस। इन सब ने भाई साहब एफर्ट्स डाले और केस को इन्वेस्टिगेट किया। Since the act of sati violated the right to life of women, finally in 1988 the government passed the Sati Prevention Act with very stringent provisions. किसी ने भी सती करने की कोशिश की, सती को प्रोत्साहित किया या सती को ग्लोरीफाई किया, सबको क्रिमिनल ऑफेंस के तहत गिरफ्तार और कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो इस तमाम चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा कि वैसे कैसे प्रोविजंस बनाए गए वुमेन के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो शेड्यूल कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, नीची जात वालों को हम भाई साहब छुएंगे तक नहीं। Touchability was removed by the 17th paragraph of the Constitution. So this was removed. ठीक है. The untouchable class was put under the scheduled caste, and they were given reservations in education as well as jobs to facilitate their development. तो जो untouchable class था, ठीक है, that was put under scheduled caste and they were given, तो इनके लिए भाई साहब jobs में provisions की गई, ठीक है। Article 17 of the Constitution abolishes the practice of untouchability. तो Article 17 है हमारे Constitution में, अगर किसी इंसान ने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने की कोशिश की या उसको प्रोत्साहित भी किया या उसको प्रोपोगेट किया, सो दैट पर्सन इज पनिशेबल बाय लॉ। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, आदिवासीज फेस एक्सट्रीम डिफिकल्टीज एज दे लिव इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड, ठीक है। They are deprived of means to earn a living and are dependent solely on agriculture and forest produce. तो काफ़ी गरीब परिवार से ही आते हैं बेसिकली। They suffer from malnutrition, क्योंकि भाई साहब इनके घर में अच्छा पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा करके इनके बच्चे या उनका परिवार कुपोषण का शिकार है। And poor health, they do not have access to medical facilities and other modern amenities. तो इनको भाई साहब एक्सेस नहीं है किसको? मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर मॉडर्न एमिनिटीज। In the Indian Constitution, आदिवासीज have been enumerated as scheduled tribes. तो आदिवासीज को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? scheduled tribes. They are getting given representation in law boards, education, government service, etc. ठीक है? Nomadic and denotified tribes. The castes and tribes that move from place to place for a livelihood are called nomadic tribes. तो ऐसे कास्ट या ट्राइब्स जो एक जगह से दूसरी जगह भाई साहब भटकते रहते हैं, एक जगह पे स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, उनको हम बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। बंजर बंजारे बोलते हैं ना जिनको हम, ठीक है। सो दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द ब्रिटिश हैड डिक्लेयर्ड सम ऑफ देम एज क्रिमिनल्स, क्योंकि इनसे हम क्रिमिनल काम करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक जगह पे स्थायी रूप से रहते हैं तो कोई हम काम करेंगे तो हम पकड़े जाने की हमारी संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम अस्थायी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भाई साहब अपने फैमिली के साथ कंटिन्यूसली शिफ्ट करते रहते हैं, तो कोई भी इलीगल काम हम करके चले जाएंगे, हमको पकड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि ना ही हमारा कोई एड्रेस प्रूफ है और ना ही कोई हमारा परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इनको क्रिमिनल्स घोषित किया था कुछ लोगों को, ठीक है।
The law passed by the British in 1871 to curb crime mentioned some of the groups as criminal tribes and their occupation and movements were banned. तो इनके ऑक्यूपेशन को प्लस मूवमेंट्स को बैन किया था। हाँ, एक तरफ से ये ठीक भी है कि अगर कोई इंसान का भाई साहब परमानेंट जगह नहीं है रहने को, तो वो कोई भी क्राइम करके आगे निकल लेगा ना भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा ठीक भी था, लेकिन गलत भी है क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। This law was repealed in the post-independence period. The nomadic tribes were included among the denotified tribes. The notified tribes were given special attention to ensure social inclusion. तो ये denotified tribes हैं, इनको scheduled tribes बोलते हैं हम, और इनको भाई साहब इंक्लूजन, सोसाइटी में इनका इंक्लूजन हो और इनको नॉर्मल ट्रीट किया जाए, इसके लिए काफ़ी सारा व्यवधान किया गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन टू देम इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर, इनके लिए भाई साहब प्रोविजंस बनाए गए। माइनॉरिटीज इन अ सोसाइटी, द ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, लैंग्वेज और रेस विच आर फ्यूअर इन नंबर आर रिकॉर्डेड एज माइनॉरिटी, ठीक है। ऐसा सोसाइटी जहां पे भाई साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग या रेस या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग कम हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है। As there are various religions, sects and languages in our country, there is a great cultural diversity. Constitution has given the minorities certain cultural and educational rights, ठीक है। So as there are various religions, sects and languages in our country, there is a great cultural diversity. Constitution has given the minorities certain cultural and educational rights. They have right of setting up separate educational institutions, ठीक है। The government implements various schemes for their progress. तो जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो होती हैं, जैसे अगर समझ लो तमिल्स लोग कहीं पे माइनॉरिटी में है तो दे कैन सेट अप देयर ओन कॉलेजेस, ठीक है। अगर मोहम्मडन्स जो है तो अपने मस्जिदों में मदरसा खोल सकते हैं जहाँ पे मुस्लिम तरीके से टीचिंग दी जाती है। तो ये माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे राइट्स दिए हुए। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। अनटचेबिलिटी वाज रिमूव्ड बाय द डैश पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा? 17, ठीक है। In the Indian Constitution, Adivasis have been enumerated as scheduled tribes, scheduled castes, nomadic tribes, denotified tribes. तो ये हो जाएगा scheduled tribes. Okay. The practice of untouchability was banned by law. After independence, our Constitution adopted the values of freedom, equality, fraternity, and social justice. In order to follow these rules, the practice of untouchability was curbed by law, and untouchability was removed by the 17th paragraph of the Constitution. तो अनटचेबिलिटी क्या है भाई साहब? आप छुआछूत की बीमारी, मतलब हम नीची जाति वाले को छुएंगे तक नहीं, उनको भाई साहब कोई भी चीज़ देना रहेगा तो ऐसे फेंक कर देंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। द अनटचेबल क्लास was put under the scheduled caste and they were given reservations in education as well as jobs to facilitate their development, ठीक है। Thus the practice of untouchability was banned by law. There is a need to give special protection to Adivasis. Adivasis face extreme difficulties as they live in remote parts of the country. They have not been exposed to the progress made by man in the modern times. तो Adivasis के अपने झमेले हैं भाई साहब। They are underprivileged and are economically and socially backward. They are deprived of means to earn a living and are dependent solely on agriculture and forest produce, which are not lucrative as they are based on primitive methods. तो आदिवासी लोग जो जंगल में फल फूल वगैरह होते हैं या सूखी लकड़ियाँ होती हैं, उससे अपना जीवन बसर करते हैं, and that is not adequate enough, ठीक है। Their land is not high yielding and therefore they suffer from malnutrition and poor health. तो इनका भाई साहब malnutrition और poor health होता है। They do not have access to medical facilities and other modern amenities. इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंक्लूड किया गया है, जिनके लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे प्लस जॉब्स में रिजर्वेशंस दिए हैं, ठीक है।
Due to the above reasons, there is a need to give special protection to Adivasis. The constitution gives cultural and educational rights to minorities. In a society, the group of people of a particular religion, language or race which are fewer in number are referred to as minority. तो पहली बात तो minority होता क्या है, जिसका भाई साहब number less हो, ठीक है, in a society. Since our society is diverse, we see various cultures, religions, sects and languages in our country. In order to enable the minorities to protect, conserve and develop their culture, traditions and language, our constitution has given them certain cultural and educational rights. What efforts did the Indian government take in post-independence period for the development of nomadic tribes? Nomadic tribes क्या होते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या ही स्टेप लिए थे इनके डेवलपमेंट के लिए? इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू अवे विथ रिप्रेसिव लॉज एनैक्टेड बाय द ब्रिटिश. तो ब्रिटिशर्स ने तो इनको क्रिमिनल्स घोषित कर दिया था. ज़्यादा करके ब्रिटिशर्स के टाइम पे इनको क्रिमिनल्स घोषित किया गया था. तो इंडियन गवर्नमेंट बोलिए भाई क्रिमिनल्स नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इनको हम सोसाइटी में हमको इनको इंक्लूड करना है. सो हाउ डू वी डू इट? Hence, the unjust law passed by the British mentioning some of the nomadic groups as criminal tribes was repealed in the post-independence period. तो ये जो unjust law था कि भाई साहब ये nomadic tribes हैं, ये repeal हुआ, ठीक है. This was basically repealed. The nomadic tribes were included among the denotified tribes. They were given special attention to ensure social inclusion. तो इनको भाई साहब special attention दिया गया. Representation was given to them in the educational institutions and government sector. तो इनको भाई साहब रिप्रेजेंटेशन भी मिला, ठीक है. तो ये था भाई साहब हमारा चैप्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन ऑल फील्ड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. आफ्टर इंडिपेंडेंस भूदान मूवमेंट, वुमेन वॉलंटियर्स कैरीड द मैसेज ऑफ भूदान टू ऑल ओवर इंडिया एंड दिस वाज लेड बाय आचार्य विनोबा भावे, ठीक है. इन द तेलंगाना पीजेंट्स आर्म स्ट्रगल वुमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. लापनी मोर्चा, चिपको मूवमेंट, एंटी लिकर मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है. इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर में क्या क्या हुआ? इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी एंड दिस वाज लेड बाय किधर गई भाई साहब, उसका नाम किधर गया? The government of India constituted a committee on the status of women. A comprehensive survey for several issues of women was conducted. A statewide conference for women was held. तो ये सारे तमाम चीज़ें हुई जिनके बारे में हमने पढ़ा भाई साहब. ये लॉज फॉर वुमेन है. राइट टू एलिमनी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मुस्लिम वुमेन्स एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है. ये सारे आपके एक्ट्स हैं जो लिए गए हैं. Okay, that completes the chapter. Just a moment.